Hello students, Jai Gurudev. This is Kavita Jain and your chemistry teacher. Okay, so I would like to revise all the taught portion in the month of April. Okay, after that we will go for new chapter, that is second chapter. So first we will revise the chapter matter in our surroundings. Okay, so what is matter? Matter is a substance which has mass and occupy space. Okay. So suppose if we take this spoon. Okay. So some of the part of universe is occupied by this spoon. Okay. And this also have some mass. Okay. So matter is a substance which has mass and occupies the space. Okay. Next. Some of the properties we will discuss about the matter. Okay, so see, I will show you some experiments. Okay, first concept topic is matter is made up by particles. Okay, see, this is potassium dichromate. Sorry, this is KMnO4. KMnO4 means potassium permanganate. Okay, so you have clearly seen that this is made up of particles. Okay, and this is sugar. Sugar is having particle. So all these substances are matter. Okay, so if we take some of the sugar and add it into water. Okay, so clearly seen that sugar is soluble in water. Okay, so here I have taken a small amount of water because after some time this sugar will dissolve in water because it has so many constituent particles. Okay, so matter is made up by tiny particles. Okay, large of tiny particles. So see, sugar gradually dissolve in water, and because it is soluble in water, no? If we mix some wax or some chalk powder, so it can't dissolve. And later we will discuss about the category of matters, okay, or type of matters. Okay, next topic is that how small the particles of matter. Okay, so for this I will explain with this activity. This is potassium permanganate. Okay, few crystals I will mix in water. Okay, clearly seen, few crystals means 3 to 4 crystals I have mixed with water. Okay, see, if we take, sorry, this is okay. See, this is soluble. Okay, so if we take half spoon of this water, colored water, to colorless water, it becomes colored. Okay, it becomes colored. And after that, if we take 1 spoon of water to this, so this is becomes colored. Okay, but intensity of color is less because we take small amount of water to this. You have clearly compare both the bowls. Okay, here tint of purple color clearly you have seen, and this is pure water. Okay, if we add small amount of this solution to plain water or pure water, so it becomes, again it has some very light shade of purple color we have clearly seen. Okay, so this shows that a matter is made up of very tiny particles.
बिकॉज इफ मैंने थोड़ा सा क्रिस्टल इसमें लिया बट सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल्स आए होंगे, very very less. So these particles make this water solution is colored. Okay, and after that, among all the quantities, I have taken small amount of water with the particles. Okay, so in that amount very few particles comes and mix with this bowl. Okay, so gradually by this method we can clearly see that the matter is made up by very tiny particles. Okay, next, now we will discuss about the some characteristic of matter particle. Okay, so for in this case, first topic is the particles of matter have some space in between. Okay, जो भी particles हैं उनके बीच में space होता है. See, mark the label of water in this glass. Okay, okay, I will mark with a pen. Suppose this is the label of water. Okay, I have marked now. So if water doesn't have any space, okay, so any substance, other substance can't mix with water. Okay, suppose this is sugar particles. Okay, sugar particles, so volume of sugar particles you have clearly seen when we mix this sugar into water. Okay, so okay, it will take time because I mix large size particles. So if we mix in powder form, so it will dissolve easily and earlierly. Okay, okay, some sugar dissolve. Okay, see the level of water again. Okay, it can't rises. वाटर का लेवल जो मार्क किया था उतना ही है उस शुगर को मिक्स करने के बाद भी. ओके, सो व्हेन शुगर इज कंप्लीटली डिसॉल्व, एट दैट कंडीशन ऑल्सो यू हैव चेक द लेवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर लेवल. ओके, सो दिस वाटर remains up to this mark. Okay, even dissolving of sugar also. What does it mean? It means water is a matter and water molecules having some space. Molecules means water के जो भी particles हैं उनके बीच में space है. Okay, so उस space में sugar के particles insert हो गए. क्लियर है? सो वे मिक्स हो गए हैं शुगर पार्टिकल्स अमंग द वाटर मॉलिक्यूल्स. सो इफ वाटर डजंट हैव एनी स्पेस एंड वी विल ऐड सम शुगर पार्टिकल्स, सो वाटर लेवल विल बी राइज्ड. ओके, यदि नहीं इसमें स्पेस होता तो वो उसे ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करता, क्योंकि शुगर हैवी है वो नीचे जाता, अपने लिए स्पेस बनाता शुगर और वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर की तरफ पुश करता. क्लियर? लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है. इसका मतलब है कि वाटर मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस था, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, जिस स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स बीच में मिक्स हो गए हैं, इंसर्ट हो गए हैं. नेक्स्ट property of particles is the particles of matter are continuously moving. Okay, so for this I will take a crystal of potassium permanganate. Okay, a single crystal I have taken.
Okay, and when we mix it into water, so clearly you have seen that their particles are continuously moving in condition. Okay, yeah, like this. Okay, see, अनडिस्टर्ब वाटर है, हम उसे बिल्कुल भी मिक्स नहीं कर रहे हैं, स्टेरिंग रोक दी गई है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसके पार्टिकल्स देखिए मूव होते जा रहे हैं एंड दे विल स्प्रेड थ्रू आउट द बल्क. ओके, सी, विदाउट डिस्टर्बिंग, विदाउट स्टेरिंग, all the particles move far from each other. Okay, when we disturb this solution, so because by stirring मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम उस पर. मैकेनिकल वर्क करने से, वर्क भी एनर्जी का एक फॉर्म होता है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे. ओके, सो देखिए पार्टिकल्स उसके क्लियरली मूव कर रहे हैं पूरे टाइम. हर एक सब्सटेंस के पार्टिकल्स डिसॉल्व करने पे ये मूव हो रहे हैं. ओके, नेक्स्ट, सपोज second example for this is when we drop ink into water, so clearly rapidly ink molecules spreaded all over the bulk provided of water. Okay, see, KMnO4 continuously spreaded their particles moving far from each other. Okay, so this shows that the particles of matter are moving in condition. Okay, next is they have attraction among them. Okay, इनके बीच में attraction force होता है. This activity shows the moving of particles. Okay, when we increase the temperature, the moving of particle is also increases, because by providing temperature their kinetic energy is also increases, so they disperse easily or more rapidly. Okay, so I will take this is hot water in this container, and this is cold water. See, ice water. Okay, so in this bowl I will take cold water. Okay, this is hot water and this is cold water. Okay, this is cold water. Okay, cold water. Then the same amount of sugar I will add into both the containers. Okay, then what will happen? कोल्ड वाटर में हमने स्टायरिंग की, सेम ड्यूरेशन फॉर hot water. Okay, so you have clearly seen that the hot water dissolves more sugar as compared to cold water. Okay, because in this case, compare the number of particles in both the cases. Okay, here sugar particles dissolve rapidly, but in cold water it dissolves difficultly. Okay, in this case temperature is high as compared to this one, so high temperature provides the kinetic energy of molecules. Okay, and it also helps to break the attraction force among them. Okay, sugar particles के बीच में जो attraction force है, जिसकी वजह से वो आपस में अटैच थे, उस फोर्स को ब्रेक कर रहा है टेम्परेचर, और फोर्स के ब्रेक होने से ही तो ये डिस्पर्स हो रहे हैं, इसमें स्प्रेड हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, कोल्ड वाटर में आप देखिए शुगर, डिसॉल्व शुगर का अमाउंट बिल्कुल कम है, इसके कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है.
ओके, सो टेम्परेचर प्रोवाइड्स द काइनेटिक एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी क्या है, उनको मूव करने के लिए एक फैक्टर है. ओके, पार्टिकल्स को स्प्रेड होने के लिए एक फैक्टर है. ओके, नेक्स्ट इज ऑल्सो पार्टिकल्स हैविंग अट्रैक्शन फोर्स विथ ईच अदर. ओके, ये सारे के सारे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होता है, लाइक दैट. ओके, सी दिस इज द रबर बैंड. ओके, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे, रबर बैंड को आप स्ट्रेच करोगे, ओके, लाइक दिस वे. ओके, सो इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इसीलिए इसे इसका फोर्स या आपने जो एफर्ट लगाया है उसे अलग कर देंगे तो ये वापस से अपने प्लेस पर आ रहा है, ये इस तरह से, इस तरह से. ओके, इसके लिए एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, बट आई कांट राइट नाउ, आई कांट एबल टू मैनेज असिस्टेंट. सो यू नो वेरी वेल दैट रबर स्ट्रेच करने पे फैलता है, और जैसे ही आपने इसको छोड़ा, उसको उसमें जो फोर्स लगा रहे हैं उसे छोड़ देंगे तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है. वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि रबर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये इस तरह से. ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. सेम हम वाटर के साथ कर सकते हैं. जैसे कि सपोज हमारे पास, आई विल टेक, मैं आप इस एक्टिविटी को आपको वाटर को पोर करते समय यदि हम उसकी स्ट्रीम को कट करना चाहेंगे तो वो कट नहीं होती है. क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है. ओके, सो दिस इज ऑल्सो शोन बाय अ एक्टिविटी. नाउ यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड दैट particles having attraction force among each other. Okay, if a water stream pour in this glass, so when we cut the stream of water, it can't, है ना. इसको काटने से स्ट्रीम को हम रोक नहीं पा रहे हैं, वो तो गिरते ही जा रहा है. क्यों? क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करके लेके जा रहे हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर. ओके, states of matter means physical states. Okay, so in our surrounding or at room temperature, matter exists in 3 physical states: solid, liquid and gas. Okay, solid state, liquid state and gaseous state. Okay, gaseous state, you already feel that air is a gaseous state, air is in gaseous state, air is a mixture of gases. So gas को हम feel कर सकते हैं. ओके, गैसियस स्टेट को हम फील कर पाते हैं. ठीक है, जितने भी रूम टेम्परेचर पे हमें स्टेट देख पा रहे हैं वो सभी हमारे सिलेबस में हैं. इनके अलावा भी 2 स्टेट और होती हैं, दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड सुपर कूल्ड स्टेट, बट ये रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करती है. तो आपके लिए सिलेबस में सिर्फ 3 स्टेट्स हैं. ओके, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट. ओके, द एग्जाम्पल ऑफ ऑल द 3 स्टेट्स, this is solid state, this is also solid state, liquid state. Water is also exist in a liquid state at room temperature. Okay, this candy is solid in state, sugar particles solid, wax solid, spoon solid, salt KMnO4 ये भी solid है. Okay, but ice is the form of solid form of water. ice solid state में है, वाटर उसका लिक्विड फॉर्म है. ओके, सो ऑल दीज थिंग्स, रबर इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट. ओके, डायरी, प्लेट जो भी है वो सभी के सॉलिड स्टेट में. दिस पेन इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट. ओके, सो रूम टेम्परेचर पे हमें सिर्फ 3 स्टेट ही देखने मिलती हैं. ठीक है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस स्टेट. ओके, सो नाउ next topic is the comparison of all the 3 states. इन तीनों स्टेट्स में क्या कंपैरिजन है हम ये देखते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज. ओके, फर्स्ट इज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन रबर बैंड, दिस क्लियरली शोज दैट द अट्रैक्शन फोर्स इज हाई इन रबर. ये छोड़ने से ये वापस से वही जा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई. Okay, in liquid state, force of attraction not too much high, otherwise it can't flow.
ओके, इसमें इसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सॉलिड स्टेट में होता है। ओके, अदरवाइज अब हम इस वैक्स को यदि खींच रहे हैं तो ये खींचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके फोर्स इतना स्ट्रांग है कि आपस में ये एक दूसरे को मूव नहीं होने दे रहे हैं। ओके, हम इसे क्रश करेंगे। हम इस चॉक पीस को यदि हम ये क्रश करते हैं तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब इनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इस तरह से इसका मतलब है इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। ओके, लिक्विड में उतना ज़्यादा नहीं है। यदि लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता तो हम इसे इस तरह से स्पून से नहीं उठा पाते, इस तरह से हम उसे नहीं ले पाते। मीन्स हमने इसके पार्टिकल्स को डिटैच करके ले आए हैं। ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता तो आसानी से नहीं हम इसे ले पाते एक स्पून में। ओके, बट अट्रैक्शन फोर्स है तभी ये एक साथ में नीचे स्ट्रीम के फॉर्म में गिर रहा है। क्लियर है? ओके, गैशियस सब्सटेंस में उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, बहुत ही लीस्ट होता है। सो इट मीन्स अट्रैक्शन फोर्स अमंग ऑल द थ्री स्टेट्स, सॉलिड हैज highly strongly strong attraction force, gaseous state में attraction force least and liquid में in between both the state. Okay, extent या magnitude of attraction force in liquid is higher than gaseous state but less than solid state. Second, I will add some sugar particles in water molecule. Previously, I explained that the particles having space, okay, in solid state and compared to liquid state. Okay, solid state में space कम है. ओके, यदि स्पेस होता तो मैं इस चॉक को और कंप्रेस कर पाती है। मैं इसे कंप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मीन्स इसके पार्टिकल्स टाइटली बाउंडेड हैं एंड देयर इज लीस्ट और नेग्लिजिबल स्पेस, इंटर मॉलिकुलर और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ही कम है, इसलिए कंप्रेस नहीं हो पा रहा है। सेम फॉर वाटर ऑल्सो, वाटर भी बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है। इट मीन्स स्पेस होगा तो पार्टिकल्स पास आएंगे, उसमें है ही नहीं स्पेस। गैस में चूंकि बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस ज़्यादा होता है। आई विल डिस्कस the comparison of all the three physical states, okay, on the basis of some properties. So here properties, here solid, second is a liquid and third one is gas. Okay, we know at room temperature substance or matter exists in solid, liquid or gaseous state. Okay, first on the basis of property like inter particle force of attraction, this is the short form of attraction. Okay, inter particle force of attraction in solid state very high, in liquid state less than solid, and gaseous state least or negligible. Okay, force of attraction among gaseous particles is negligible or least. Okay, in liquid state more than less than solid state but more than gaseous state. Okay, in solid state force of attraction is very high. Second, interparticle vacant space, interparticle vacant space
Okay, in solid state, though they have high force of attraction, so they come close to each other. Okay, so that's why their interparticle vacant space is less. Okay, so here least space in में, but more than solid state. Okay, and a gaseous state very large. Okay, in gaseous state particles के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है. Okay, if you release 1 ml of any gas in this room, or LPG, you can take example of LPG. Na? If you switch on the burner but not ignite this, so in your house all the rooms having the smell of LPG gas. Okay, so इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस है. Okay? Next, third is rigidity. Okay, means compactness. Okay, so solid are rigid, not rigid, and this is also not rigid. Okay, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब ज्यादा होगा, टाइप से बंधे होंगे, तो उनमें रिजिडिटी होगी. ओके, नेक्स्ट, दिस फ्लूइडिटी. फ्लूइडिटी इज द इनवर्स ऑफ रिजिडिटी. ओके, फ्लो होना. ओके, फ्लो कैसे होंगे? नॉट फ्लो, इनमें फ्लूइडिटी होती है और इनमें हाई फ्लूइडिटी. ओके, फ्लूइडिटी को कैसे समझेंगे? दो दे हैव वेरी हाई attraction force among the particles, so they can't allow to move other particle from far away. Okay, ये दूर नहीं जाने देगा एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से. फ्लो में क्या होता है? अलाउ करते जाने के लिए, इसमें अलाउ नहीं करेगा. ओके, इन लिक्विड आपको सबको पता है, पानी आप गिराएंगे फ्लो होगा. और गैस का तो अभी एग्जांपल दिया. एलपीजी गैस आप ऑन कर दीजिए सिलेंडर, पूरे घर में, पूरी कॉलोनी में, हर जगह उसकी स्मेल आएगी. स्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स में जो स्मेल है, तो पार्टिकल्स मूव करेंगे, फ्लो करेंगे, तो उसमें स्मेल आएगी. ओके, नेक्स्ट, वॉल्यूम. ओके, वॉल्यूम. दो दे हैव टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर, बहुत टाइट उनमें बॉन्डिंग है, बहुत कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है. सॉलिड हैविंग दिस टाइप ऑफ कॉम्पैक्टनेस और इंटरनल स्ट्रक्चर. ओके, देयर पार्टिकल्स आर associated with each other strongly. Okay, in liquid state they have more space, interparticle space, as compared to solid state. In gaseous state, like this. Okay, gaseous state particles और दूर हैं. So, volume. Volume of solid is definite. है ना? Suppose ये solid है, इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है. ये solid है, इसका भी अपना वॉल्यूम फिक्स्ड है. ओके, चॉक सॉलिड है, इसका अपना वॉल्यूम भी फिक्स है. सेम फॉर लिक्विड इज ऑल्सो हैविंग डेफिनेट वॉल्यूम डेफिनेट है. 1 ml वाटर 1 ml ही रहेगा, चाहे उसे आप टेस्ट ट्यूब में लीजिए, चाहे बाउल में लीजिए, चाहे बीकर में लीजिए. सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज डेफिनेट, बट वॉल्यूम ऑफ गैस इज नॉट डेफिनेट और indefinite.
इनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। ओके, कैसे? वही 14 kg एलपीजी गैस एक कंटेनर में रखी हुई है, सिलेंडर में रखी हुई है, हमने उसको उसका नॉब रिलीज कर दिया। ओके, उसका हमने नॉब अलग कर दिया, तो वही गैस जितना भी स्पेस मिलेगा उतने को ऑक्यूपाई कर लेगी। आपने कॉर्नर पे यदि एक इंसेंट स्टिक लगाई है, अगरबत्ती यदि जलाई हुई है, या परफ्यूम की बोतल से स्प्रे किया हुआ है, ओके, सो पूरे रूम में उसकी स्मेल जाएगी, मीन्स उसके पार्टिकल्स जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, उसके पार्टिकल्स ने जितना वॉल्यूम मिल रहा था, अवेलेबल था, उस सब को ऑक्यूपाई कर लिया। ओके, इसलिए उनका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, शेप। शेप, ओके, सो हर एक सॉलिड का शेप फिक्स्ड है। अब इसका शेप देखें, इसका शेप फिक्स है। इस पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, सपोज हम इस चौक की बात कर रहे हैं, इसका शेप अपना फिक्स्ड है, इसका शेप अपना फिक्स्ड है, ये सॉलिड, तो द कंपोनेंट इज सेम, बट सॉलिड स्टेट में इनका अपना शेप सेम है, वो डेफिनेट होगा। ओके, सो डेफिनेट। इन केस ऑफ लिक्विड, आपने 100 ml वाटर ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप, प्लेट में रखा प्लेट का, पेन में रखा पेन का शेप ले लेगा, बकेट में रखा बकेट के हिसाब से वो अपना शेप बनाएगा। मीन्स एज शेप ऑफ लिक्विड एज पर कंटेनर शेप, एज पर कंटेनर शेप, इसे बहुत ध्यान से समझेंगे। कंटेनर के शेप के हिसाब से होगा, कंटेनर का शेप नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यदि हमने एक ग्लास का यदि शेप पूरा है, या इस बाउल का अपना एक शेप है, ठीक है, और हमने सिर्फ इतना सा पानी इसमें लिया, तो क्या उस पानी का शेप भी पूरा हो गया? वैसे ही हो गया? नहीं, इसके अकॉर्डिंगली होगा, लेकिन इसका ही होगा ये हम तब तक नहीं कह सकते जब तक इसे हम फुल नहीं कर लेंगे। ओके, क्योंकि उसका वॉल्यूम तो डेफिनेट है, तो जितना ml होगा वो जहां तक जो शेप ऑक्यूपाई कर पाएगा वो करेगा। ओके, तो यहाँ एज पर कंटेनर शेप, बट इन केस ऑफ गैसियस स्टेट सेम एज कंटेनर शेप से क्लियर कर लेंगे आप। जितना कंटेनर का शेप था बिल्कुल वही शेप गैसियस स्टेट में आ जाएगा, किसी भी गैस का आ जाएगा, लेकिन लिक्विड में उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को वो शेप देगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अरेंजमेंट ऑर्डर। Arrangement of particles. Okay, arrangement of particles. In solid state, they have a fixed arrangement. Okay, ये orderly arranged. Orderly arranged है. Okay, मतलब उनका एक fixed arrangement रहेगा, और इसीलिए तो इनका वॉल्यूम, इनका शेप सब कुछ फिक्स होता है। ओके, सेकंड, लेस ऑर्डरली अरेंज्ड। ओके, लेस ऑर्डरली अरेंज्ड, और यहाँ रैंडमली अरेंज्ड। ओके, सॉलिड्स में पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है, एक डेफिनेट ऑर्डर रहता है, इसमें लेस ऑर्डरली अरेंज रहते हैं, एंड हियर इन गैसियस स्टेट दे आर रैंडमली अरेंज्ड। ओके, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो कोई अरेंजमेंट है ही नहीं इनका, एक फिक्स्ड ऑर्डर नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट।
very high. Though they are solid state having tight force of attraction, strong force of attraction. So for melting or boiling, we require to provide more heat. Okay. So melting point and boiling point is high, less than solid state, and low. They have low melting and boiling point. Okay. So arrangement and melting point, boiling point, all the comparison is covered, which will be in your syllabus. Okay. Next.